who's made it possible, जिनके विजन में वीर ने पूरा बिलीव किया और समर्पित कर दिया. जोरदार तालियां रवि गोगले जी के लिए, द कैप्टन ऑफ द शिप, द डायरेक्टर. और रवि गोगले जी, मैं चाहूंगा कि प्लीज मंच पे आए. और वाओ, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स ऐसे हों तो सच में फिल्म जो है, it speaks volumes, man, and this is what your trailer has done. Your songs have been so amazing, Ravi ji. Commendable job. बहुत सारे सवाल हैं, मगर उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे वो इंसान जिन्होंने तेलुगु से ये फिल्म हिंदी में लाने का सोचा. So thanks to him. अनिल साबरी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. The producer of the film, and of course he has worked really closely, like I told you, with Shahrukh Khan साहब. And हमारा सौभाग्य है कि ऐसे तीन दिग्गज हमारे साथ मंच में मौजूद हैं. मैं चाहूंगा यहाँ पे हम सब एकत्रित हो जाएं. So वीर, आपने 25 साल अमेरिका में स्पेंड किए, and then few years back when you came to India, you started working on this film. So आखिर how did this happen? How did legally Veer happen to you? Okay, so I lost my dad, so you can see it's a tribute to my dad for the film. So I was stuck in India. So उस time lockdown हो चुका था. So my flight ticket, I had a flight ticket to go back to US. So and then things happen. Fate has its own way. So how to kill my time here during that 6 months? So I thought I'll start a podcast. Oh, now that's so relevant. So is the film. So I started weekly with Veer, dialogue with Diaspora, and in search of some technical folks for the audio. When you have a podcast, you have to get it rendered, whatever, all the technical terms. So that's when I ran into some film folks. Then I thought, okay, because in India, one thing I observed it, आप लोग सोचते होंगे कि भाई साउथ से आता है, so mythological genre और elevated stars ऐसा. लेकिन लीगली भी ऐसा एक फिल्म है, तो एक complete Indian legal thriller है. So आप जो देखा वो कुछ नहीं है, film courtroom drama. right. It will give you the chills and required chills and thrills. And you will tell me this after watching it. Absolutely, I think while having the look at the trailer, I mean, we were totally amazed, and of course also amazed by the looks and the character that you have portrayed in 4 different visuals. That was really amazing. और इस तरह से अगर आपने लॉकडाउन में प्लान किया है, so that was amazing. So the story was basically, the title is my name. Of course, Hindi audience के लिए बहुत अच्छा है. It's basically justice, right? How do we Arman was asking me why this title. तो क्या legally भी मतलब क्या है? मतलब legally जो जीत, which is nothing but justice. So you can interpret the way you want it. But I just, to be honest with you all, so if I'm making a film, why don't it be my name, right? I don't know whether I'll make a next film or not. So, and also there's almost Legally Blonde, and that's a comedy. Right. So similarly, then I thought, okay, I'll make complete trailer. So luckily it worked out well, and I'll really thank Anil Saab for flying down to Hyderabad and watching our film and believing in us, giving us the confidence. So let's see. Of course, all the people from the industry have loved the film so far. And ऐसे में Ravi ji, there's so many questions in our mind, in media's mind. But एक सवाल, आपने 300 ad films बनाए, आपने 20 से भी ज़्यादा screen plays लिखे हैं बड़ी-बड़ी फिल्मों में. You've worked people like Chiranjeevi down south. So why Legally? What made you feel that this is the script I want to work upon with Veer? Thank you to media. Actually क्या है ना सर, ऐसे रियलिटी मूवीज बहुत कम आते हैं. फिर मूवी का मतलब ये नहीं है कि कमर्शियल से उनको एंटरटेन किए, मगर जैसा उनको इंफॉर्मेटिव एंटरटेन करना ये फिल्म है. इसलिए ये फिल्म मैंने स्टोरी भी वैसे ही लिखा था जैसे मैंने वीर को स्टोरी बोलने के टाइम पे वैसे ही. And also, if I can add, so all of us are watching live criminal justice system. जैसे ज़्यादा बोलेगा तो यूट्यूबर्स जो भी हो. So Abhinandan was asking me, उनका कोई केस है तो मैं बता रहा हूँ. सब पे एक होता है. Right. Justice. So you can see what you have to go through, whether you're innocent or whatever you're guilty, you have to follow the process. And for process most of the times is a punishment. फिर भी करना पड़ता है. Absolutely, and the way I'm sure बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शायद छोटा अमाउंट या फिर एक ऐसा important केस जो शायद आपके लिए मैटर करता है मगर शायद किसी और के लिए नहीं करता है.
सो वो एक आम आदमी में जो चीज बीतती है वो इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है. सो दैट मेक्स इट अ कॉमन मैन फिल्म एंड दिस इज हाउ तेलुगु फिल्म्स आर यूजुअली नोन फॉर. इवन क्या है ना सर, जब भी हम आम आदमी को एक केस का जो फाइल होता है ना, क्राइम में इन्वॉल्व होने का एक झूठी इंजाम में फंस जाता है, तो खाली वो आदमी एक ही नहीं है, उनका फैमिली भी सफर होता है Absolutely. उसके साथ. Right. हम जस्ट उनके पेपर में देखते हैं कि खाली उनका फोटो, मगर जैसे उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैसे छेड़, अगर वो उनका बीवी कहीं उनका माँ बाप यहाँ बाहर गए तो कैसे होता है. जब ये हम देखते हैं न्यूज़ का मतलब दिखने वाला, जो पेपर में दिखने वाला या ना तो मीडिया में दिखने वाला, मगर उनका फैमिली का सफर कैसे रहता, पेन, उस पेन को हमने इस पे प्रोजेक्ट किया है. यही ये फिल्म है. Wow, I think it's beautifully shown in the trailer so far. और I think फिल्म में ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा, तभी अनिल साबरी जी यहाँ पे इसको हिंदी सिनेमा तक लेके आए हैं. हैदराबाद तक आए. जी एग्जैक्टली. सो अनिल जी, अगला सवाल जैसे कि आप जानते हैं आपसे ही है मेरा, कि व्हाट मेड यू ब्रिंग दिस फिल्म टू हिंदी ऑडियंसेस? इस फिल्म का कंटेंट अच्छा लगा था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसको हिंदी में एक बार कोशिश करते थे प्लीज. और जबकि बताना चाहूँगा अनिल जी के पास बहुत सारे अक्सर प्रपोजल्स आते हैं फिल्म्स को लेके, ये वो, एंड देन आई थिंक अगर अनिल जी यूज वर्क विद रेड चिलीज, यूज वर्क विद शाहरुख खान साहब, वो अगर इस फिल्म को लीगली वीर को लीगली हिंदी बनाना चाहते हैं तो कुछ तो कारण होगा. सो ऐसे में वी रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. और ट्रेलर में हमने वो बात देखी है, और डिफरेंट लुक्स में जो हमने देखा है वीर को, that says it all, because this Veer is different. These are actually 5 different Veers which I have seen so far today. One in this, another in the trailer, third in the song, and then goes on. So Veer, we want to know about the looks that you have worked upon Nothing, throughout. it's just a common man, aam aadmi hu, just demystified. This is a corporate look. This is I go back to my life. So unless you all make it super success on set. Sure it will. Of course, we'll think about making, but nothing just being like we were talking outside. So I think the movie will convey the message that commoner versus celebrity justice. Everybody today is talking about, right? So some people are missing in action. They need to go to the police station to give the statement. You remember innocent, but you follow the process. Already one girl is going. Right. You know who I'm talking about. Yeah, we've got that. So that's the essence of it. So I urge people, like, we are living in a democratic society. We have to follow the process, and whether you like it or hate it, you have to follow it. And that's what the message, like Ravi said, it's not just entertaining with the thriller, but it's also educative. It will provide some education from the 360 view of a criminal justice system. ये फिल्म है फर्स्ट टाइम जो फुल 360 व्यू ऑफ लीगल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बनाया. तो पूरा ये सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री विद कोर्ट रूम ड्रामा है. तो आप पूरा फैमिली परिवार के साथ देख सकते हैं. इसमें कुछ मैसेज भी है, हम सबको रूल्स और कानून को फॉलो करना पड़ता है, तो ये मैसेज है. सर आपसे जानना चाहूँगा एज अ डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था इस चीज़ पर रिसर्च करना, और थोड़ा सा अगर बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वीर भाई के साथ. और जैसा हमने जो स्टोरी लिखने के टाइम पे स्टोरी लिख लिया, मगर हेलो जैसे फिल्म बनाने के टाइम पे इसका जो भी है स्टोरी लिखने का इजी तरीका होता है, मगर उनका रियलिटी में लाने में कुछ ना कुछ मदद तो पड़ता है. मगर बेसिकली प्रोड्यूसर जी लायर होने के नाते मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रगल होने की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो मैं इजीली हो गया. जो भी डाउट होगा उनसे बैठ के बात करने का, उसका डेवलप कर लेने का, जो सेक्शंस है, जो कैसे लॉ प्रोसीड होता है, कैसे एसएचओ इन्वेस्टिगेट करता है, कैसे पुलिस उनको विटनेस कलेक्ट करते हैं, ये सब हमने इनसे पता करके उसको डेवलप करके कर. सर आपसे जानना चाहूँगा सभी चीज़ों को सबके सामने लेके आना कितना चैलेंजिंग था, उसके बारे में कुछ बताइए. और थोड़ा सा बताइए कि लॉस के बारे में आपने क्या क्या रिसर्च किया था और कितना चैलेंजिंग था ये. तो हम लोग सब फिल्म सब अगर मैं फिल्म बैंक्रप्सी लॉ के बारे में बना दे तो बोरिंग हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा, आप ही भाग जाएंगे इधर से. नहीं, तो अब सब जो भी फिल्म बनता है क्रिमिनल लॉ के बारे में बनता है ना.
तो या वो हमारा मर्डर ट्रायल है जी, तो उसमें हम दिखाएंगे मिडिल क्लास लोग कैसे ये पुलिस स्टेशन जाए, नहीं तो एक कोर्ट रूम जाए स्टेटमेंट देने के लिए किसी चीज़ के लिए, तो कैसे घबराते हैं वो लोग, जबकि वो लोग इनोसेंट हैं, फिर भी ना सिचुएशंस ऐसे हो जाता है कि वो लोग फंस जाते हैं। तो वो सब दिखाए, रिसर्च थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टीज लिया हम लोग, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा, डॉक्यूमेंट्री बन जाता है। तो इधर उधर सेक्शंस, प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स सब जो असलियत क्लोज टू रियलिटी दिखाए। किसका आइडिया था कि इसको हिंदी में भी रिलीज करना चाहिए और क्या प्लान है कि और भी लैंग्वेजेस में? मैं जैसे दिल्ली में पढ़ा हूँ 7 साल, तो ऑब्वियसली तो मेरे को तो प्लान था पहले दिन से, मैं पैन इंडिया टाइप ही, स्टोरी यूनिवर्सल है जी, तो हमारा देश में तो एक ही कानून चलता है, तो इसीलिए तो हिंदी में क्या बाकी लैंग्वेज में भी बनाएंगे। सर आप बताइए कैसे जुड़े फिल्म के साथ और कैसा एक्सपीरियंस रहा ये फिल्म करने का? मैं जब हमारे एक मित्र है सचिन जी, वो जब मुझे इनके साथ वीर जी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, जब मैंने इनकी पिक्चर देखी तब मुझे बहुत अच्छी लगी कंटेंट, तो हमने यही डिसाइड किया था कि इसको हिंदी में भी कोशिश कर लेते हैं। उस हिसाब से हमने ये प्लान किया कि इसको हिंदी में ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ करते हैं। भाई we have seen your different looks, थोड़ा सा बताइए कि लुक्स के ऊपर कितना एक्सपेरिमेंट किया एज एन एक्टर आपने? कोई नहीं, बस जिम जाना बंद करा दिया है लोग 8 महीने से, बस ये है और कुछ नहीं। जो देखते दाढ़ी बस शेव कर दिया, बस कुछ नहीं। तो बस सचिन अनिल साहब मेरा दोस्त, लॉयर का दोस्त है, तो अच्छा हुआ, इनका बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हैदराबाद आके देखे फिल्म, कितना लोग आते हैं। तो हमारा फिल्म दूसरा टाइप है, साउथ से आता है ना, जो आजकल फिल्म आ रहा है आपका मिथोलॉजी और जो भी हीरो एलिवेशन फिल्म्स आते हैं, तो हमारा ट्रू ऑल इंडिया फिल्म है जी, बस इतना तो कह सकता हूँ। अब लेबलिंग नहीं हो सकता है कि भाई ये साउथ नॉट, ये ऑल इंडिया में चलता है। तो आपका डेब्यू फिल्म है, एक्साइटेड, नर्वस, क्या फीलिंग है? और ऑल्सो ये भी जानना चाहूँगा कि कौन सा एक्टर से इंस्पायर होते हैं आप? तो ये फिल्म के लिए खुद को मतलब जो सिचुएशन के थ्रू करा दिया, तो मैं हमेशा फेवरेट रहा हूँ शाहरुख खान साहब का, बस और क्या, उनसे 1-2 बार मिला भी, कॉलेज डेज में आए थे जब 90s में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ओके।